નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આજે આપણે એક એવા વિષયની ચર્ચા કરવાના છીએ જે જગતના તાતને સ્પર્શે છે. જગતના તાતને સ્પર્શે છે, માટે આપણને સૌને સ્પર્શે છે. દર્શક મિત્રો, એક સમય એવો હતો, આપણે આઝાદ થયા અને 1951માં આપણી પહેલી પંચવર્ષીય યોજના લખાઈ. પહેલી પંચવર્ષીય યોજના લખાઈ તે સમયે આપણે PL 480ના ઘઉં ભીખ માગીને ખાતા હતા. કુલ ઉત્પાદન આપણા ત્યાં અનાજનું 5 કરોડ ટન હતું, આજે 30 કરોડ ટન કરતાં વધારે છે. વસ્તી વધી છે, પણ વસ્તી વધ્યા છતાં પણ આપણો દેશ અનાજની બાબતમાં સ્વાવલંબી બન્યો છે. અને એની જો કોઈને તમારે સલામ કરવી હોય તો જગતના તાત ખેડૂતને કરવી પડે. આપણે કેર નામની સંસ્થા દૂધનો પાવડર આપતી હતી ભેટ આપણને. બાળકોને સ્કૂલમાં ડાયટરી સપ્લિમેન્ટ એટલે પૂરક આહાર તરીકે આપણે વિટામિન મળે તે માટે એનું દૂધ બનાવીને પીવડાવતા હતા. આજે દૂધના ઉત્પાદનમાં વિશ્વમાં ભારત પહેલા નંબરે છે. ફળ અને શાકભાજીના ઉત્પાદનમાં ભારત વિશ્વમાં બીજા નંબરે છે. 50,000 કરોડ રૂપિયાનું અનાજ, ફળ અને શાકભાજી આપણા દેશમાં બગડી જાય છે. અને આમ છતાંય આપણે દુનિયા પાસે ભીખનું શકોરું લઈ અને અનાજ કે કોઈ દૂધ માટે ભીખ માગવી નથી પડતી. આ જશ જો કોઈને જવો જોઈએ તો એ આપણા ખેડૂતને, આપણા જગતના તાતને જાય છે. દોસ્તો, વિચાર કરો કે જો આટલું અનાજનું ઉત્પાદન ન થતું હોત, આટલું દૂધનું ઉત્પાદન ન થતું હોત, આટલા ફળ ને શાકભાજીનું ઉત્પાદન ન થતું હોત અને આ બધું આયાત કરીને તમારે ચલાવવાનું હોત તો એની કિંમત કેટલી પડત? એ કિંમત આપણે ડોલરમાં ચૂકવવી પડત. અને $1ના રૂપિયા કેટલા થાય? એ ક્યારેક 70 પણ થાય, ક્યારેક 75 પણ થાય. ડોલરમાં ચૂકવ્યા પછી પણ તમારા બંદરે આવે તો એને છેક છેવાડાના ભાગ સુધી પહોંચાડવા માટે ટ્રાન્સપોર્ટેશનનો ખર્ચો લાગે. કેટલી કિંમત થાય? એનું ગણિત માંડવા જઈએ તો અધધ થઈ જાય. વિદેશી ઊંડિયામણ બચે છે, જગત પાસે ભીખનું શકોરું લઈને ફરવું નથી પડતું અને રાજ્યોમાં ભૂખમરાની પરિસ્થિતિ ઊભી ન થાય તે માટે ટ્રાન્સપોર્ટેશન થકી દૂર સુદૂરના રાજ્યોમાં આપણે બંદરો ઉપરથી અનાજનો પુરવઠો નથી પહોંચતો કરવો પડતો. આ બધાનો જશ આપણા ખેડૂતને જાય છે. અને એટલે ખેડૂત અનાજનું ઉત્પાદન કરે છે અને મિનિમમ સપોર્ટ પ્રાઇસના ધોરણથી ન મપાય, એને એક્સપોર્ટ સબસ્ટિટ્યુશનના ધોરણથી માપવું જોઈએ. અને એક્સપોર્ટ સબસ્ટિટ્યુશનના ધોરણથી એટલા માટે મપાય કે એક ખર્ચો તમારે ડોલરમાં કરવો પડ્યો હોત અને ટ્રાન્સપોર્ટેશન માટે તમારે ડીઝલની જરૂર પડી હોત. આ નથી કરવું પડતું. એનો જશ આપણા કિસાનને જાય છે, આપણા ખેડૂતને જાય છે. દર્શક મિત્રો, ખેડૂતો 26મી જાન્યુઆરી 2021ના પ્રજાસત્તાક દિને દિલ્હીમાં ટ્રેક્ટર રેલી કરી. અત્યાર સુધી આ આંદોલન શાંત હતું, પણ ખેડૂતોએ 26મી જાન્યુઆરીએ દિલ્હીમાં યોજેલી ટ્રેક્ટર પરેડ દરમિયાન દિલ્હીમાં અરાજકતાના વરવા દ્રશ્યો સર્જાયા. પ્રજાસત્તાક દિનની ગરિમા નંદવાઈ. તોફાન બાદ તંગદિલી વધતા ખેડૂતોએ 1 ફેબ્રુઆરીની સંસદ કૂચ સમજદારીપૂર્વક રદ કરી. 8 મહિના પછી ફરીથી ખેડૂત આંદોલન આક્રમક બન્યું. દિલ્હીની સરહદે ચાલતું આંદોલન 22 જુલાઈ 2021થી સંસદની નજીક જંતર મંતર ખાતે શરૂ થયું. ખેડૂતોએ જંતર મંતરમાં ખેડૂત સંસદ ભરી. કિસાન મોરચા દ્વારા 5મી સપ્ટેમ્બરે મુઝફ્ફરનગર રેલી રૂપી કિસાન મહાપંચાયત કરવામાં આવી. ત્યારબાદ 27 સપ્ટેમ્બરે સંપૂર્ણ ભારત બંધનું એલાન પણ કિસાન મોરચા દ્વારા આપવામાં આવ્યું. રવિવાર તારીખ 3 ઓક્ટોબરે ઉત્તર પ્રદેશના લખીમપુર ખીરી વિસ્તારમાં મુખ્યમંત્રી કેશવ પ્રસાદ મૌર્યના એક કાર્યક્રમ પહેલા ખેડૂતો અને ભાજપના નેતાઓ વચ્ચે હિંસક ઘર્ષણ થયું. ભાજપના નેતાઓએ ખેડૂતો પર પોતાની SUV કાર ચલાવી દીધી, જેમાં 3 ખેડૂતોના મોત નીપજ્યા હોવાનો આરોપ ખેડૂત સંગઠનોએ લગાવ્યો. જ્યારે અનેક ખેડૂતો ઘવાયા. આ ઘટના બાદ રોષે ભરાયેલા ખેડૂતોએ ભાજપના નેતાઓની કારો સહિતના વાહનોને આગ લગાવી દીધી અને રોડ જામ કરી દીધો. કેન્દ્રીય ગૃહ રાજ્યમંત્રી અજય મિશ્રા અને યુપીના ડેપ્યુટી CM કેશવ પ્રસાદ મૌર્ય એક કાર્યક્રમ માટે લખીમપુર ખીરી જવાના હતા. કૃષિ કાયદાનો વિરોધ કરી રહ્યા ખેડૂતોને જ્યારે આ અંગે જાણ થઈ ત્યારે તેઓ હેલીપેડ પર પહોંચ્યા. રવિવાર તારીખ 3 ઓક્ટોબરે સવારે 8 વાગે જ ખેડૂતોએ હેલીપેડ પર કબજો કર્યો. હેલીપેડ પર કબજો હોવાની જાણકારી મેળવ્યા બાદ અજય મિશ્રા અને કેશવ મૌર્ય લખનૌથી સડક માર્ગે લખીમપુર જિલ્લા મુખ્યાલય પહોંચ્યા હતા. અહીં યોજનાઓનું લોકાર્પણ કર્યા બાદ ડેપ્યુટી CM કેશવ પ્રસાદ મૌર્ય અને કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રી હેલિકોપ્ટરના બદલે ગાડીથી બનવારી ગામ જઈ રહ્યા હતા.
બનવારી ગામ અજય મિશ્રાનું પૈતૃક ગામ છે. અહીં કુસ્તી મેચની શરૂઆત કરવાની હતી. બપોરે લગભગ 2:45 વાગે મિશ્રા અને મૌર્યનો કાફલો તિકુનિયા 4 રસ્તા પાસેથી પ્રસાર થતો હતો ત્યારે ખેડૂતોએ તેમને કાળા વાવટા બતાવતા દોડી ગયા હતા. આ દરમિયાન કાફલામાં સામેલ અજય મિશ્રાના પુત્ર આશિષ મિશ્રાએ પોતાની કાર ખેડૂતો પર ચડાવી દીધી હતી. આ દરમિયાન જ ભાજપના નેતાઓ અને ખેડૂતો વચ્ચે હિંસક ઘર્ષણ થયું હતું, જેમાં 8 લોકો માર્યા ગયા હતા અને 10 જેટલા લોકો ઘાયલ થઈ ગયા હતા અને માર્યા ગયેલામાં 3 ખેડૂતો હોવાનો દાવો સંગઠનોએ કર્યો હતો. આ બધી જ વાતો મીડિયામાં અત્યાર સુધી વ્યાપક રીતે ચર્ચાઈ છે, એટલે ખાલી એના અહેવાલ પરથી આ પૂર્વ ભૂમિકા રૂપે હું અહીંયા રજૂ કરું છું. આ અગાઉ 25મી સપ્ટેમ્બરે ખેડૂતોએ કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રી અજય મિશ્રાએ એક જનસભાને સંબોધિત કરવા જઈ રહ્યા હતા ત્યારે લખીમપુરમાં સંપૂર્ણ નગર ક્ષેત્રમાં કાળા વાવટા બતાવ્યા. ખેડૂતોએ અજય મિશ્રાના એક નિવેદનનો વિરોધ કર્યો. ખેડૂતોનું કહેવું હતું કે મંત્રી બન્યા બાદ અજય મિશ્રાએ કહ્યું હતું કે અમે જો ગુસ્સે થઈશું તો અમે શું કરી શકીએ છીએ તે દરેક જાણે છે. અજય મિશ્રાએ આ નિવેદન ખેડૂતોના કાળા ઝંડા બતાવ્યા પછી આપ્યું હતું. લખીમપુરની ઘટના પહેલા મિશ્રાનો એક વિડીયો વાયરલ થયો હતો, જેમાં તેઓએ ખેડૂતોને જોઈ લેવાની ધમકી આપતા હોવાનો દાવો કરાયો છે. આ વિડીયો અંગે સ્પષ્ટતા કરતા કેન્દ્રીય મંત્રી અજય કુમારે કહ્યું હતું કે મારો હેતુ ખેડૂતોને ડરાવવાનો કે ધમકાવવાનો નહોતો. શબ્દોને તોડી મરોડીને ખોટી રીતે રજૂ કરવામાં આવ્યા છે. લખીમપુર ખીરીની ઘટનાની સ્વતઃ નોંધ લેતા સુપ્રીમ કોર્ટે ઉત્તર પ્રદેશ સરકારને 8 લોકોની હત્યા સંબંધે કોને આરોપી બનાવાયા છે અને એમની ધરપકડ થઈ છે કે નહીં અંગે સ્ટેટસ રિપોર્ટ દાખલ કરવા જણાવ્યું હતું. સરકાર દ્વારા સુપ્રીમ કોર્ટમાં રજૂ કરાયેલ સ્ટેટસ રિપોર્ટ મુદ્દે સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું હતું કે સરકારે લીધેલા પગલાંથી અમને સંતોષ નથી. હજુ સુધી એક પણ આરોપીની ધરપકડ કરવામાં નથી આવી. જવાબમાં સરકારે કહ્યું કે શનિવારે 9 ઓક્ટોબર સવારે 11 વાગે આરોપી આશિષ મિશ્રા ક્રાઇમ બ્રાન્ચ સમક્ષ હાજર થઈ જશે. શનિવારે 9 ઓક્ટોબરે આશિષ મિશ્રા એસઆઈટી સમક્ષ હાજર થયા હતા. 12 કલાક કરતાં વધુ સમય તેમની પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ તપાસમાં સહયોગ નહીં કરવાના અને કેટલાક સવાલોનો જવાબ નહીં આપવાના આરોપમાં આશિષ મિશ્રાની ધરપકડ કરાઈ હતી અને 14 દિવસની જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં મોકલી અપાયા હતા. ઉત્તર પ્રદેશ ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ સ્વતંત્ર દેવ સિંહે 10મી ઓક્ટોબરે પક્ષના કાર્યકરોને સંબોધતા જણાવ્યું હતું કે નેતાગીરીનો અર્થ કોઈને લૂંટવાનો નથી કે ફોર્ચ્યુનર નીચે કોઈને કચડવાનો નથી. આ રીતની સ્પષ્ટતા ભારતીય જનતા પક્ષના ઉત્તર પ્રદેશના પ્રમુખશ્રીએ કર્યા બાદ કિસાનોએ હિંસક નહીં બનવું જોઈએ તેવી અપીલ એમના એક સિનિયર નેતા ટેકેતે પણ કરી હતી. આજે આ બધી બાબતોને લઈને કિસાન આંદોલન દ્વારા ચાલતી ગતિવિધિઓ વગેરેને ચર્ચા કરવા માટે આપણે એમના જ એક નેતા સંયુક્ત કિસાન મોરચાના સભ્ય અક્ષય નરવાલને નિમંત્રણ આપ્યું છે. સરકાર સાથેની ચર્ચા માટેની કોર કમિટીના નરવાલજી સભ્ય છે. સિંગુ બોર્ડરથી નજીકના ગામના તેઓ શ્રી રહેવાસી છે. આંદોલન માટે કોલેજનો અભ્યાસક્રમ પૂર્ણ કરવાનું માંડી વાળ્યું અને આંદોલનમાં જોડાય છે. અક્ષયજીને संयुक्त किसान मोर्चा सभ्य के अलावा सरकार के साथ जो चर्चा के लिए कोर टीम बनाई गई थी, अक्षय जी खुद उनके सभ्य हैं। सिंगू बॉर्डर से नज़दीक के गांव के आप रहवासी हैं और आंदोलन के लिए कॉलेज का अपना अभ्यासक्रम पूर्ण करना छोड़कर उन्होंने आंदोलन में अपना सर्वस्व लगाया है। ऐसे अक्षय जी नरवाल का आज हम हमारी ये चर्चा में स्वागत करते हैं। अक्षय जी, स्वागत है आपका। आपने गुजरात समाचार टेलीविज़न के साथ बात करना स्वीकार किया, उसके लिए हम तहे दिल से आपके आभारी हैं और हम मानते हैं कि आपके माध्यम से गुजरात के किसानों को और गुजरात समाचार के दर्शक मित्रों को भी एक सही जानकारी सही परिप्रेक्ष्य में मिलेगी कि किसान बंधुओं की राय क्या है और क्या इस आंदोलन की दिशा, गति और गतिविधि रहेगी। स्वागत है एक बार फिर से आपका। अक्षय जी, शुरुआत करते हैं चर्चा की। ये जो आंदोलन चल रहा है और आंदोलन में आप तो बिल्कुल अपना कॉलेज का अभ्यासक्रम भी छोड़कर जुड़े हुए हैं। धन्यवाद करना चाहिए आपका कि आपकी जो लगन है, आपकी जो कमिटमेंट है, उसकी हम सराहना करते हैं और हम जानना चाहेंगे कि आज तक की गतिविधियां क्या रही है और आगे चल के
आपकी रणनीति क्या होगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज की ही हमारी बताऊंगा कि जो लखीमपुर में जो हमारे किसान शहीद हुए, उनकी अरदास का कार्यक्रम था लखीमपुर में, टिकुलिया में, उसी जगह जहाँ पे हमारे किसानों की शहादत हुई। और उससे पहले हमारे जो मोर्चे की बैठक हुई थी, मोर्चे की बैठक में अनेकों निर्णय इस महीने के लिए गए हैं। सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए, अजय कुमार मिश्र के इस्तीफे के लिए, और जो उनका लड़का मोनू था उस घटनाक्रम में था, उसकी गिरफ्तारी के लिए। गिरफ्तार तो वो हो गए हैं, लेकिन किसान अभी चाहते हैं कि उनके पिताजी मंत्री होते हुए न्यायिक जांच में कोई हस्तक्षेप ना कर सके, तो इसकी वजह से उनका इस्तीफा की मांग भी किसान सरकार से कर रहे हैं। और आज अरदास का कार्यक्रम था, और इस अरदास के कार्यक्रम के बाद पूरे देश भर में किसानों की अस्थि के कलश लेकर पूरे देश भर में शहीद किसान यात्रा निकाली जाएगी। पूरे देश के हर जिले में किसान यात्रा निकाली जाएगी, और यूपी के हर जिले, हर गांव में यात्रा निकाली जाएगी, ताकि सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए। जो निर्मम हत्या किसानों की संयोजित तरीके से इस सरकार ने करने का काम किया है, उसके वो मैं ये कहूंगा वो मात्र किसानों की हत्या नहीं थी, वो इस देश की आत्मा, लोकतंत्र की हत्या थी, संविधान की हत्या थी। और मैं कहना चाहूंगा देश की आत्मा, जिन्होंने भी वो वीडियो देखी होगी, एक बार तो सभी मीडिया चैनल ये किसानों के ऊपर मंडना शुरू कर दिया था कि किसानों की गलती है, किसानों की गलती है। और दूसरा, जो पत्रकार हमारे रमन कश्यप जी थे, उनके घर वालों से बार बार मीडिया वाले चाहते थे कि वो ये बात कहें कि किसानों ने पीट के उनकी हत्या की है, लेकिन बुलेट का निशान उनके ऊपर था। तो मैं परमात्मा का भी धन्यवाद करूंगा, समय रहते हुए वो सब वीडियो, वो सब खुलासे इस जनता के सामने आए, और आप जैसे चैनलों का भी धन्यवाद करूंगा जिन्होंने वो चीज दिखाने का काम किया। अभी हमारी रणनीति यही है कि हम कलश यात्रा निकालने का कार्यक्रम करेंगे, और 15 अक्टूबर को पूरे देश में जब दशहरा मनाया जाएगा, इस देश के गृह मंत्री अमित शाह, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री माननीय, उन सबके पुतले जलाए जाएंगे। इस विरोध स्वरूप जितने दिनों से किसान बैठे हैं, उनकी 10 महीने से शांति प्रिय तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग नहीं मानी जा रही, तो दशहरे वाले दिन रावण के साथ साथ इन कमंडी राजनेताओं का भी पुतला जलाने का काम किसान समाज मिलकर करेगा। उसके बाद हमारा 18 तारीख को रेल रोको का प्रोग्राम है। 10 बजे से लेकर 4 बजे तक का पूरे देश भर में रेल रोको का प्रोग्राम हमारा रहेगा। और 26 तारीख को, इसके बाद भी अगर सरकार इस्तीफा नहीं लेती है अजय मिश्रा जी का, तो 26 तारीख को लखनऊ में किसान महापंचायत रखी गई है, जो लखीमपुर कांड हुआ है इसी के विरोध में। अभी इस महीने के हमारे आगामी कार्यक्रम ये हैं, और हम तो सरकार से चाहते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, इस सरकार को सद्बुद्धि दे और किसानों का जल्द से जल्द एक समाधान करने का काम करे, क्योंकि भारत के इतिहास में एक लौटा ऐसा आंदोलन है जो इतने दिनों तक चला है और शांति प्रिय तरीके से चला है। तो हम तो प्रार्थना करते सरकार को सद्बुद्धि दे, ताकि किसान भी खुशी खुशी अपने घर पे जाए, किसानों की मांगे मानने का काम ये सरकार करे। जी, अक्षय जी, बात आपने बहुत सटीक तरीके से सामने रखी है। आप जिस मुद्दों पे आगे बढ़ रहे हैं, उससे थोड़ा मैं पीछे जाके आपसे पूछना चाहूंगा कि 27 तारीख को आपने भारत बंद का कार्यक्रम रखा था। बात यही हो रही है एक सेगमेंट में मीडिया के भी और अलग थलग, कि भारत बंद का आपका कार्यक्रम है सिर्फ पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का एक अंश भाग तक ही सीमित था, बाकी भारत में उसका जो उसको प्रतिसाद मिलना चाहिए वो नहीं मिला था। और तो आप बात करते हैं पूरे देश के किसानों की, तो ये कैसे माना जाए कि पूरे देश के किसान इसमें जुड़े हैं? देखिए प्रवीण जी, मैं आपके चैनल पर बैठ के और इस कार्यक्रम में बड़ी अपनी आत्मा से अपने आपके सवालों का जवाब देना चाहूंगा। देखिए, कर्नाटक में आदरणीय शांता कुमार जी हैं, केरल में केवी बिजू जी हैं, सभी के नेतृत्व में सब कार्यक्रम हो रहे हैं। लेकिन देखिए, 10 महीने से किसान सड़कों के ऊपर बैठा है, और मीडिया के जो कैमरे हैं ना, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि देश में गतिविधियां क्या हो रही है, इस देश की जनता को दिखाने में हमारे देश के कुछ मीडिया चैनल
शर्मा रहे हैं किसानों की हालत दिखाने में, किसानों के कार्यक्रम दिखाने में। तो उस दौर में हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जो आपने अपनी बात कही कि पूरे देश में आपका भारत बंद का प्रोग्राम नहीं था, बात ऐसी नहीं है। आप देखिए छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में अलग अलग किसान पंचायतों के लिए सबको बुला रहे हैं। और दूसरा मैं बात करूं, जो मुख्य रूप जो इस आंदोलन का आधार बना है, एक तो एमएसपी का गारंटी कानून और जो 3 कृषि बिल है। देखिए जो अदर स्टेट्स हैं, मगर बिहार की बात करूं, बिहार में 2006 में मंडी खत्म होना शुरू हो गई थी। और भी जितने भी स्टेट हैं, हरियाणा पंजाब के अलावा जो प्रोक्योरमेंट मंडियों के माध्यम से होती थी, वो हरियाणा पंजाब में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर स्टेट। तो ये बात हम स्वीकार करते हैं कि जितना हरियाणा पंजाब का इसमें योगदान है, वो बात हम भी उन किसानों तक पहुंचाने में मोर्चा भी, क्योंकि सरकार ने तरह तरह के षड्यंत्र रचने का काम किया। बीच बीच में भी जो सरकार का काम इस तरफ होना चाहिए कि इन किसानों का समाधान निकाले, तो मोर्चा अपनी पूरी ऊर्जा से हर स्टेट में जो किसानों के रिप्रेजेंटेटिव है, वो भारत बंद के प्रोग्राम भी करते हैं। जो कॉल होती है मोर्चे की, उसमें भी पूरा हिस्सा लेते हैं। ऐसी बात नहीं, हमारे पास कर्नाटक से वीडियो आते हैं, फोटोज आते हैं, उड़ीसा से आते हैं, हर जगह से आते हैं। निश्चित इस बात को नहीं झुठलाया जा सकता। आज ये आंदोलन मीडिया की स्क्रीन पे या टीवी की स्क्रीन पे है या नहीं, हमें उस बात का नहीं पता, लेकिन हम ये बात जरूर कह सकते हैं, आज 125 करोड़ लोगों के दिल और दिमाग में ये आंदोलन जरूर है। बात तो वैसे मैं आपसे एक हद तक सहमत हूँ, क्योंकि किसान तो हम जगत का तात बोलते हैं, तात यानी कि पिता। वो 30 करोड़ टन से ज़्यादा अनाज आज पैदा करता है। हम दूध के उत्पादन में दुनिया में 1 नंबर पे है, फल और सब्जी की उत्पादन में हम दुनिया में 2 नंबर पे है। अगर ये नहीं होता और ये चीज़ें अगर हमें इंपोर्ट करनी होती, तो शायद इस देश में अंधाधुंधी का माहौल हो जाता। इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए डीजल लगता, आप पोर्ट पे अनलोड करते, फिर वहाँ से दूर दराज इलाकों में उसको पहुँचाना होता, वो भी काफ़ी हमारे लिए मुसीबत का रीज़न हो सकता था। आज हम आराम से चैन से अपनी रोटी खा रहे हैं, तो किसानों की वजह से खा रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। आपकी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए बस एक बात कहना चाहूंगा जी। देखिए, जो हमारे जो शहर के भाई थोड़ा सा ये सोचते हैं ना कि किसान हट कर रहे हैं, किसान अपनी मांगों पे अड़े हुए हैं, सरकार से समझौता नहीं चाहते, और कुछ लोग ऐसे रूमर्स फैलाते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, या जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो ज्ञाता होते हैं, वो कहते हैं कि किसान अड़े हैं अपनी मांगों के ऊपर। देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो आपने बात की उसी को आगे बढ़ाते हुए, जो आज किसान लड़ाई लड़ रहा है ना, ये सिर्फ किसान अपनी जमीन को बचाने की लड़ाई नहीं लड़ रहा, ये पूरे हिंदुस्तान की जमीन की लड़ाई है। क्योंकि हम अगर दूसरे कानून की बात करें, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, जिसमें अमेंडमेंट अभी किया गया है, उससे आदरणीय व्यास जी, उससे किसानों को तो इतना नुकसान होगा ही नहीं। क्योंकि देखिए, जो स्टॉक लिमिट, जो हमारी आवश्यक जो खाद्य सामग्री है, उसके ऊपर जो स्टॉक लिमिट इन्होंने बढ़ाई है, एसेंशियल जो खाने पीने की चीजें हैं जरूरी, उससे तो इस देश के कंज्यूमर को ज्यादा नुकसान होगा। किसान तो अपना अनाज कम से कम पैदा कर लेगा और उससे रोटी बना के, जैसा आपने कहा, अपना पेट भर लेगा। लेकिन जो कंज्यूमर भाई हमारे शहर में बैठे हैं, जो ऐसा समझते हैं कि किसान हट पे बैठे, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आज किसान पूरे देश के 125 करोड़ लोगों की लड़ाई लड़ रहा है। आज किसान को बचाने के नहीं, इस देश की आत्मा, लोकतंत्र और संविधान को बचाने की भी लड़ाई लड़ रहा है। तो उस एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से आदरणीय व्यास जी, उस कंज्यूमर्स का ज्यादा नुकसान होगा एज कम्पेयर टू फार्मर। अक्षय जी, एक और भी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से पूरे मामले की तपास कराने का, इंक्वायरी कराने का ऐलान किया है। जो लोग घायल हुए उनको 10 लाख और जो मृतक है उनके एक डिपेंडेंट को सरकार में नौकरी देने की बात कही है। क्या ये जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बातें कही है,
उससे किसान मोर्चा उससे संतुष्ट है या किसान मोर्चा, क्या उसके बारे में उनकी आपकी राय क्या है, रिएक्शन क्या है? देखिए, हम इतना कहना चाहेंगे, जो सबसे जरूरी बात तो ये है, पैसे और नौकरी से भी हटके। अक्षय जी, मैं एक अक्षय जी, मुझे खेद है, मुझे थोड़ा समय आपको रोकना होगा क्योंकि कमर्शियल ब्रेक का समय हो रहा है। उसके बाद फिर आपकी आप जो बात कर रहे हैं चालू रहेगी। तो धन्यवाद अब तक की आपकी बातों के लिए। फिर वापस जुड़ते हैं हम एक साथ थोड़ी मिनटों के बाद। દર્શક મિત્રો, સમય થયો છે એક નાનકડા કમર્શિયલ બ્રેક માટેનો. રોકાઈશું અને ત્યાર પછી પાછી અક્ષયજી સાથેની ચર્ચા ચાલુ રહેશે. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, બ્રેક બાદ ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે. ચર્ચા ચાલી રહી છે. ઉત્તર પ્રદેશ સરકારે હાઈકોર્ટના રિટાયર્ડ જજ દ્વારા તપાસ કરવાનું જાહેર કર્યું છે. જે ઘાયલ થયા છે એમને 10 લાખ રૂપિયાનો રિયાયત, 10 લાખ રૂપિયાનું એમને કોમ્પન્સેશન આપવાની વાત કરી છે. અને જે લોકો મૃતક છે એમના એક સગાને સરકારમાં નોકરી આપવાની વાત કરી છે. हमें अक्षय जी से पूछना है कि अक्षय जी, ये जो जाहिरात अभी हुई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, क्या किसान मोर्चा ये जो बातें कही गई है उससे संतुष्ट है या आपकी और भी कोई मांगे हैं जिसके लिए आप अभी भी आपके जो आंदोलनात्मक स्टेप्स है वो लेना चाहेंगे? देखिए व्यास जी, मैं ये बताना चाहूंगा, पहले थोड़ा सा ये समझना चाहिए कि जो जिन भाइयों जिन किसानों की जान गई है वो नौकरी और पैसे के लिए नहीं गई, वो जान गई है जो हमारे 3 कृषि कानून है उनका विरोध कर रहे थे। और इन 4 भाइयों की नहीं, हरियाणा की मैं बात करूं और पूरे देश भर में इस आंदोलन में लगभग 700 लोग अपनी जान दे चुके हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा सर, ये जो हमारा मेन मुद्दा है उस मुद्दे की पूर्ति के लिए उन भाइयों ने अपनी जान दी है। और असल श्रद्धांजलि संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से या इस देश के किसानों की तरफ से भी असल श्रद्धांजलि को जब होगी जब जिस कोष के लिए उनकी जान गई है और उस कोष को पूरा करवा पाए। तो मैं ये समझता हूँ सरकार के लिए ठीक है, सरकार ने थोड़ा सरकार का नैतिक कर्तव्य भी करता, मैं कहूंगा किसी घर से किसी का 19 साल का बेटा चला गया जिसके साथ उस परिवार की बहुत सारी उम्मीदें जुड़ती है नौजवान बच्चे के साथ कि बड़ा होगा हमारी सेवा करेगा माँ बाप की। तो मैं सरकार का इसके लिए धन्यवाद भी करते हैं और हम तो सरकार का जब भी धन्यवाद करते हैं। आज भी अगर ये कानून हमारे वापस ले ले और एमएसपी का गारंटी कानून बढ़ा दे, हम प्रधानमंत्री जी का पूरा मान सम्मान कर देगा किसान समाज आज के दिन भी। लेकिन जो आपने वो बात कही उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। उनको परिवार को थोड़ी सी वो आर्थिक बल मिलेगा जिसकी वजह से घर चलता है, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन मोर्चे की पहली मांग, आखिरी मांग, जिस मुद्दे के ऊपर आंदोलन चला था आज भी वही है, आगे भी वही रहेगी। और जिन भाइयों की जान गई उनका भी असल उद्देश्य यही था, असली उद्देश्य यही था, इसी खोज के लिए जान उन्होंने दी कि हमारे जो कृषि है वो क्षेत्र बचना चाहिए, ये एमएसपी का गारंटी कानून बनाना चाहिए, 3 कृषि कानून वापिस होने चाहिए। उसका मतलब तो ये हुआ कि ये आंदोलन और चाहे कुछ भी हो, जब तक मिश्रा जी का सवाल है वो एक अलग बात है, और बाकी का आंदोलन जो है वो जब तक ये तीनों कानून रद्द नहीं होते और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का जो रियायतें दी गई है वो खत्म नहीं होती, तब तक आंदोलन आप चालू रखेंगे? जी जी बिल्कुल, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि हम अपने बीच 700 किसानों को खो चुके हैं। और दूसरा बात कहना चाहूंगा, देखिए जो ये आंदोलन है ना, इस आंदोलन में जो बार बार मैं बात करूं हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की, तो उसी एक दिन तो वो लखीमपुर वाली घटना होती है, उसके साथ साथ ही खट्टर साहब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बयान देते हैं कि हर जिले के अंदर 500 से 700 लठ लेके अपने वॉलंटियर्स को तैयार करो जो इन किसानों का सामना करे, डंडे से लड़के सामना करे। किसी संवैधानिक पद पे बैठे मुख्यमंत्री की ये भाषा होनी चाहिए व्यास जी। और हम तो ये कहना चाहते हैं
भाषा इस्तेमाल करते हैं या किसानों के ऊपर लाठियां चार्ज करते हैं। हमारे आंदोलन को और मजबूती मिलती है और मजबूत करने का काम करते हैं, लाठी चार्ज नहीं करते, इस आंदोलन को चार्ज करने का काम करते हैं। और क्योंकि किसान को वो कौम है, ये दबाने से दबती नहीं, जितना दबाव जो उतना ऊपर उठती है। जी अक्षय जी, ये जो घटनाएं अभी पंजाब में हुई है, राजकीय घटनाओं की बात कर रहा हूं मैं। मुख्यमंत्री जी थे कैप्टन साहब, उन्होंने इस्तीफा दिया, वो कांग्रेस से भी अलग हो गए हैं। इससे पंजाब में क्या फर्क पड़ता है आप लोगों को? देखिए वैसे मैं बताऊं, चाहे पंजाब की बात हो या चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, हम सिर्फ ये बात समझते हैं, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो या चाहे बीजेपी रही हो। कांग्रेस की मैं बात करूं, 2007 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी। अगर वो किसानों की इतनी तहसील होती तो 2007 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने आती। उसके बाद प्रधानमंत्री जी का तो वोट मांगने का आधार ही था, पठानकोट में अपनी उसमें कही थी, अपने भाषण में नरेंद्र मोदी जी ने कि पहले कलम से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होगी। 2011 में जब हमारे प्रधानमंत्री जी आपके गुजरात के मुख्यमंत्री थे, कंज्यूमर अफेयर कमेटी की रिपोर्ट दी उन्होंने, मनमोहन सरकार से रिकमेंड किया था कि एमएसपी का गारंटी कानून बनना चाहिए। तो जो आपने बात कही कि हेलो, हाँ जी, आपका आवाज सुनाई दे रही है मुझे, आप चालू रखिए। हाँ 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 દર્શક મિત્રો, લાગે છે અક્ષયજી સાથેનો સંપર્ક થોડાક સમય માટે તૂટી ગયો છે. આપણે ફરી જોડાય ત્યાં સુધી રાહ જોઈશું. મૂળ વાત એ છે કે જ્યાં સુધી 3 કૃષિ કાનૂન અને જે અમુક છૂટછાટો એસેન્શિયલ કોમોડિટી એક્ટ 1965 આપવામાં આવી છે, ये न था ત્યાં સુધી આંદોલન ચાલુ રહેશે. हाँ अक्षय जी, आपका आवाज अब सुनाई दे रही है, आप कंटिन्यू विथ योर। हमारा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। राजनीतिक पार्टियां क्या आपस में हलचल करती है, हमारा उस बात से भी लेना देना नहीं है। व्यास जी, हम तो इस बात के ऊपर पहुंचे हैं, कौन कहा जाएगा उन्हें तो अपनी राजनीति चमकाने से मतलब है। हमारा मकसद ये है, जो सरकारें ये कुकर्म करती हैं किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, वो कुकर्म, उन कुकर्मों के आधार पर इस देश की जनता को जागरूक करने का काम हम करेंगे। भाई बीजेपी ने ये किया, कांग्रेस ने ये किया, मतदाताओं को जागरूक करेंगे। और जब हम इनके कुकर्म गिनवाएंगे तो निश्चित तौर पे तो मजदूर की सरकार, किसान की सरकार, किसान जब जागरूक होगा तो निश्चित तौर पे वो सरकारें बनेंगी जब जागरूक होकर मतदाता वोट करेगा, जो किसान के हक की होंगी, जो मजदूर के हक की होंगी। तो कौन किस क्या कर रहा है, हमें तो सिर्फ ये बताना जनता को, हमारा काम ये है। हमारा काम ये नहीं है कि कौन किसको वोट करेगा या कौन किसको वोट नहीं करेगा, या किस पार्टी ने क्या कर दिया या किस पार्टी ने क्या नहीं किया। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि पहले कह रहे थे, ये भी बात चली थी कि कैप्टन साहब तीनों काले कानून वापस करवा देंगे। हमें उस बात में भी खुशी है, चाहे कोई भी आदमी, चाहे इस देश में कोई काला चोर इन कानूनों को वापसी करवा दे, हमें कोई मतलब नहीं है। कोई भी करवाए हम उनका धन्यवाद करेंगे। हम सिर्फ ये, हमारा काम मोटा मोटा ये रहेगा सर कि इस देश की जनता को बताना आखिरी टाइम तक, ये आंदोलन हमारी जीतने के बाद भी हमारी आखिरी आंदोलन नहीं होगा, ये आंदोलनों की हमारी शुरुआत होगी। उसके बाद हमने स्वामीनाथन आयोग के लिए की रिपोर्ट के लिए संघर्ष करना है, एमएसपी ज्यादा फसलों को मिले उसके लिए संघर्ष करना है। तो संघर्ष हमारा जारी रहेगा, चाहे वो कोई भी सरकार बने, कोई भी कहीं भी जाए, और कैप्टन अमरिंदर जी करवाए समाधान या कोई और करवाए, हमें उस बात से भी लेना देना नहीं है। जी धन्यवाद। अक्षय जी, 22 जनवरी के बाद आपकी सरकार से बातचीत नहीं हो रही है, यानी कि एक तरह से कहे तो स्टेलमेट हो गया है कि न बातचीत हो रही है। अब महाभारत के पहले भी आखिरी प्रयास श्री कृष्ण जी ने किया था कि वो खुद दूत बन के धृतराष्ट्र के दरबार में गए थे ताकि कुछ सॉल्यूशन आ सके। तो जब बातचीत नहीं हो रही है तो ये जो आपकी बात है या सरकार की बात है, मैं मानता हूं कि किसी भी आंदोलन हो, किसी भी चीज में स्टेलमेट बन गया हो
तो बातचीत के जरिए ही उसका उकेल आ सकता है। क्या लगता है आपको उस चीज में आपकी क्या मान्यता है कि बातचीत फिर से शुरू होगी? बातचीत करने के लिए आप लोग तैयार है, सरकार तैयार है, क्या मानना है आपका? देखिए, हम तो व्यास जी पहले दिन से, फर्स्ट डे से हम सरकार से नेगोशिएट करने के लिए तैयार हैं। और मैं तो ये कहता हूँ आपके चैनल पे बड़ा जिम्मेदारी से, देखिए 3 दिसंबर की बैठक हुई थी, उसमें सरकार ने कहा था कि बिंदु दर बिंदु हम चर्चा कर लेते हैं, कहाँ क्या खामियां आपको लग रही है वो चर्चा कर लेते हैं। अमित शाह जी खुद इस बात को कबूल करते हैं व्यास जी कि हमारे से गलती हुई है और हम मिल बैठ के इस बात का समाधान निकालेंगे। दूसरी तरफ वो कहते हैं इनका तो हट है, काले कानून वापस करवाने की बात कर रहे हैं। कृषि मंत्री जी कहते हैं कि इन कानूनों से हटके कोई अलग बात कर लीजिए। बड़ी हास्यास्पद बात है, जिस आंदोलन का आधार ही 3 कृषि कानून है और कह रहे हैं 3 से हटके बात कर लीजिए। फिर भी हमारे किसानों ने, सीनियर किसान नेताओं ने बड़ा दिल दिखाते हुए एक बात कही कि ठीक है, इन 3 काले कानूनों की चर्चा हम बाद में कर लेंगे, हम एमएसपी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। एमएसपी के ऊपर सरकार का क्या स्टैंड है? देखिए, सरकार एमएसपी के ऊपर चर्चा करने से भी बची, बार बार बची। सरकार ने ये कहा कि सरकार के ऊपर, देश के ऊपर अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ेगा। वो समाधान भी हमने बताने का सरकार से प्रयास किया कि आप मोजाम्बिक से दालें मंगवाते हो, बाहर से इतनी सब्जियां मंगवाते हो, वो अपने देश में पैदा करवाना शुरू करो। वो सब भी हमने, जो पाम ऑयल से आप बाहर से इंपोर्ट करते हो उसको बंद कीजिए, अपने देश में जो ऑयली फसल है उनको उगाने का काम करवाइए। वो भी हमने बताने का बार बार प्रयास किया। और सरकार कहती है कि 17 लाख करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा, हम कहते हैं कि मात्र 3 लाख करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा अगर एमएसपी का गारंटी कानून बनता है। तो हम तो सर बार बार, हम तो डे 1 से कह रहे हैं, हम तो ये बात कह रहे हैं कि जब कानून बना रहे थे, जब भी हम आपसे बात करना चाहते थे, अगर जब भी आप हमें कॉन्फिडेंस में लेते, हम तो उस टाइम से सरकार से कह रहे हैं कि आप हमें कॉन्फिडेंस में लेते। और आज भी अगर सरकार रात में बात करना चाहे, सरकार दिन में बात करना चाहे, सरकार के सेक्रेटरी बात करना चाहे, प्रधानमंत्री जी बात करना चाहे, गृह मंत्री जी बात करना चाहे, कोई भी मंत्री बात करना चाहे, लेकिन मेरा निवेदन है, जैसे कृषि मंत्री जी बात करते थे किसानों से, पीयूष गोयल जी मौजूद रहते थे, तो 10 मिनट किसानों से बात की, उसके तुरंत बाद बाहर जाके फोन पे बात करते थे, फिर किसानों से बात करते थे। देखिए, हमारे देश के कृषि मंत्री हैं, कृषि का विषय है, तो कृषि मंत्री के पास व्यासी एटलीस्ट इतनी पावर तो होनी चाहिए, जिस बैठक में वो जिस मुद्दे को रिजोल्व करने की बात कर रहे हैं, एटलीस्ट उतनी पावर, कुर्सी की पावर तो लेके आए। तो अगर उन्होंने पूछना ही दूसरे से पड़ रहा कि क्या करना क्या नहीं करना, तो दूसरे से ही बात होनी चाहिए जहां से किसानों का समाधान निकलेगा। असल में इस सरकार का ध्यान जो है वो समाधान की तरफ नहीं है। सरकार आज भी कहीं ना कहीं ये सोचती है कि हम कोई ना कोई ऐसा षड्यंत्र रचे जिससे रचते रहे, और उसकी सरकार आ रही है ऐसे ऐसे षड्यंत्र जिससे इस आंदोलन को और हम कमजोर करने का काम करें। और बार बार सरकार का यही प्रयास है, यह प्रयास नहीं है कि नेगोशिएट करके किसानों को कैसे बार्गेनिंग मोड पे ले आए, कैसे इनको मनाने का काम करें, इस तरफ ध्यान है कि कैसे से नए नए रूमर्स क्या फैलाए। मैं तो व्यास जी, आप देखिए, अगर वो वीडियो लखीमपुर की अगर सामने नहीं आती परमात्मा की दया से, तो किसानों को तो बढ़ा दिया था ना उन्होंने, मुस्लिम आतंकवादी जो जिस तरह की संज्ञा देने का काम करते थे। तो व्यास जी, हम तो सरकार से हरदम बात करने के लिए तैयार हैं, जब भी सरकार बुलाएगी हम बात करने के लिए तैयार हैं, नेगोशिएट करने के लिए तैयार हैं। और हमारे जहां तक आंदोलन की बात है, संघर्ष से समाधान तक आंदोलन हमारा जारी रहेगा, हम किसी भी कीमत पे पीछे नहीं हटेंगे। हम अपने 700 भाइयों की जान गंवा चुके हैं, उनकी आत्मा में देख रही है, उनको हम क्या जवाब देंगे। तो निश्चित तौर पे हमारा आंदोलन जारी रहेगा और सरकार को पहल करनी चाहिए। सरकार बातचीत करना चाहे या सरकार और कोई सरकार के पास रास्ता हो, उसकी तरफ सरकार को ओवर करना चाहिए, जो सरकार अभी तक नहीं कर रही है। जी अक्षय जी, आपने आपकी जो बात कही उसमें एक शब्द 1 से ज्यादा बार यूज किया, षड्यंत्र। तो क्या आपको ऐसी कोई दहशत है कि इस आंदोलन में कोई फूट पड़े या इस आंदोलन में कोई ध्रुवीकरण की प्रक्रिया हो, या उसकी वजह से आंदोलन या तो कमजोर हो जाए या हो सकता है कि आंदोलन में विभाजन हो जाए? आपको ऐसी दहशत है क्या? देखिए, मैं इस बात का तो जवाब मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए सर, मैं ये बात कहना चाहूंगा बड़े बड़े मन से
हम अगर आज ये समझे ना कि हमारे साथ लोग जुड़े हैं, मैं नेता हूं, मेरे कहने की वजह से आंदोलन हो रहा है, या ये भ्रम किसी नेता को, तो ये भ्रम बहुत गलत है। आज ये आंदोलन किसी नेता के नेतृत्व में नहीं, मैं ये कहूंगा संयुक्त नेताओं के नेतृत्व में हो रहा है, और जिसका सीधी सीधी जवाबदेही जनता को है। और इस आंदोलन में जो जनता जुड़ी है वो किसी नेता के साथ नहीं जुड़ी, वो बल्कि इस आंदोलन के साथ जुड़ी है। इसलिए हमें इस बात का कतई भय नहीं है। बार बार सरकार ने तो प्रयास किया ना कि अलग अलग किसान नेताओं से बात भी की, अंडर टेबल करने की कोशिश की, वहां से उनको ऐसा कोई लूप होल क्रिएट किया जाए इस आंदोलन में। तो हमें परमात्मा की दया से 10 महीने तक आंदोलन चला है, चाहे कोई भी ऐसी भी बात रही हो तो संयुक्त किसान मोर्चा ने वो बात अच्छी तरह से निपटाई है। चाहे किसी भी सीनियर किसान नेता की बात हो, वो भी अच्छी तरह से निपटाई है। किसी एक नेता या नेताओं के हाथ में आंदोलन नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा व्यास जी, ये आंदोलन जनता के हाथ में है, और जनता का दबाव ही जो हमारे किसानों की नेता है उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा है। जितना सरकार के ऊपर दबाव है जनता का, उतना ही उन नेताओं के ऊपर दबाव है। अगर कोई भी नेता हमारा इस तरह की हरकत करेगा या हम भी समझ करेंगे तो वो नेता निपट जाएगा, जो आंदोलन जो भी तो चलेगा। जी अक्षय जी, बात तो आपने बहुत पते की, मगर मैं आपको एक और प्रश्न की ओर ले जाना चाहूंगा कि आप कहते हैं कि आंदोलन स्वयंभू है, और क्योंकि आंदोलन स्वयंभू है इसीलिए जनता ही वो आंदोलन के लिए जुटी है और जुटती रहेगी, तो इसमें कोई फूट पड़ने की कोई शक्यता नहीं है। यही बात है तो और राज्यों में आपका जो आंदोलन है वो उतना जितना आप इसको उत्तर प्रदेश में या हरियाणा या पंजाब में या उत्तराखंड में जो हिंदी भाषी बेल्ट है उसमें जितना आप उसको सक्रिय कर सके हैं, और राज्यों में क्यों नहीं होता है? देखिए, मैं गुजरात की घटना की बात करना चाहूंगा। गुजरात आदरणीय युद्धवीर सिंह जी, किसान नेता संयुक्त किसान मोर्चा के, गुजरात में आए थे, और आप देखिए कैसे जेके पटेल जी आपके गुजरात के किसान नेता उस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, युद्धवीर सिंह जी बैठे थे और अन्य किसान नेता गुजरात के उसमें बैठे थे। तो कैसे ऑन कैमरा पुलिस किसान नेताओं को उठा लेती है। तो आप देखिए, मैं कहूंगा इस देश में लोकतंत्र अपनी बात रखने का जो स्पेस है, इस बीजेपी सरकार ने उस स्पेस को बिल्कुल कम करना चाहती है। और इस देश में हमने ये अनुभव किया कि जितनी मजबूत सरकार होनी चाहिए, उस सरकार से भी ज्यादा मजबूत देश का विपक्ष होना चाहिए। वो कहीं ना कहीं हमारे देश का विपक्ष बहुत कमजोर है। इसकी वजह से भी हमें ये लगता है जो बात आप किसान उठा रहे हैं, जो बात संसद में उठनी चाहिए थी, और वो संसद की बात आज हमने सड़क से उठानी पड़ रही है। जो आपने हिंदी भाषा की बात की, देखिए आदरणीय व्यास जी, जो बीजेपी सरकार है ना किसी भाषा को नहीं समझती। हमने इतनी शांति प्रिय तरीके से अनेकों अपने नई नई टैक्टिक्स अपनाई, नए नए तरीके इस आंदोलन में अपनाए, भारत बंद करके हो या दिल्ली कूच करने की बात करके हो या बैरिकेड तोड़ के किस मंत्रियों का घेराव करने की बात हो, हर तरीके अपनाए, लेकिन सरकार को समझ में नहीं आ रही है। तो व्यास जी, इस सरकार जो ये समझती है ना, हमने ये समझा सरकार वोट की चोट को समझती है। हमारा ध्यान अभी उत्तर प्रदेश में इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में चुनाव होना है। तो अगर हमें ये लगता है, अगर उत्तर प्रदेश में हम बीजेपी के कुकर्म जनता को बताएंगे कि बीजेपी सरकार ने ऐसे ऐसे गलत कानून बनाए किसानों के, ऐसे ऐसे मजदूरों के गलत कानून बनाए हैं, ऐसे ऐसे रेल को बेच दिया, एयरपोर्ट्स को बेच दिया, देश की संपत्ति को बेचने का काम बीजेपी ने किया है, रोजगार खत्म करने का काम बीजेपी ने किया है। तो जब हम ये बात पूरे उत्तर प्रदेश में बताने का काम करेंगे तो हमें ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पर बीजेपी के खिलाफ वोट करेगी। तो जो भाषा बीजेपी समझती है उसी भाषा में जहां पे चुनाव होता है हम
उन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए आज किसान मोर्चा पूर्ण रूप से तैयार है। अक्षय जी, आपकी बात मान ली जाए कि बीजेपी की सरकार गुजरात में होने की वजह से ये एक तरह से ऑन कैमरा काफी चीजें हुई और उसकी वजह से ये आंदोलन गुजरात में जिस तरह से उसको उठना था नहीं उठ सका। तो हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, तो वहां तो बीजेपी की सरकार होने के बावजूद भी आप लोग काफी धड़ल्ले के साथ आंदोलन कर रहे हैं। तो गुजरात की बात ऐसे कैसे मानी जाए कि गुजरात में बीजेपी सरकार होने की वजह से नहीं हुआ? व्यास जी, मैं ये बात नहीं कह रहा कि बीजेपी की सरकार होने की वजह से आंदोलन मजबूत नहीं हो रहा। व्यास जी, मैं ये बात कह रहा हूँ हमारा विपक्ष कमजोर होने की वजह से जो हमारी संसद और विधानसभा में बात करनी चाहिए थी, वो आज किसान सड़क से अपनी बात उठा रहा है। मैंने ये बात की, लोकतंत्र में जो स्पेस होता है अपनी बात रखने का, वो स्पेस बहुत कम हो चुका है और उस स्पेस को बीजेपी की ये टैक्टिक्स है, बीजेपी की ऐसी सोच है, उस स्पेस को और ज्यादा कम करना चाहते हैं। तो व्यास जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो गुजरात में आंदोलन नहीं हो, मतलब मैं तो ये कहूंगा कि आप गुजरात से हैं और गुजरात की तरफ जब मतलब ऐसा जब माहौल बनेगा कि किसान नेताओं की जरूरत है जब उसके ऊपर जो गुजरात को वोटने का काम किया या जो अपनी बात की कि हरियाणा में भी उसकी बीजेपी की सरकार, हम उस बात का भी जवाब दूंगा, तो निश्चित तौर पे हम ऐसा करेंगे। हम तो बंगाल में भी गए व्यास जी, बंगाल में भी आंदोलन का असर दिखा। तो जो हमने 10 महीनों से अलग अलग तरीके अपनाए व्यास जी, और बीजेपी क्या तरीका समझती है, जो मैंने बात की वोट चोट का तरीका समझती है। निश्चित तौर पर जब गुजरात में चुनाव होंगे तो निश्चित तौर पर मोर्चा वहां भी जाएगा, अगर जब तक बात नहीं मानी जाएंगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, दूसरा बात हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है। देखिए व्यास जी, मैंने पहले भी कहा कि जो अदर स्टेट है ना, ये बखूबी इस बात को कबूल करते हैं कि कहीं जो हमारा आइडिया है वो पहुंचाने में भी थोड़ा सा मोर्चा ये लगा लो, एकदम से इतना बड़ा आंदोलन हुआ तो उसमें भी हम कहीं ना कहीं उसमें और सुधार की गुंजाइश या और अच्छा करने की बहुत सारे गुंजाइश है। तो हरियाणा में आंदोलन इस वजह से मजबूत हुआ व्यास जी। जो प्रोक्योरमेंट हरियाणा में फसल की होती है, हरियाणा और पंजाब में मैक्सिमम प्रोक्योरमेंट मंडी के माध्यम से होती है, अदर स्टेट में इतनी मंडी के माध्यम से नहीं होती है। और जिस मंडी को खत्म होने का डर इस आंदोलन में हमने इन कानूनों में बताया है, वो जो इन कानूनों में बात कही गई है, तो उसका प्रचार प्रसार हरियाणा पंजाब में हुआ और वो बात लोगों को समझ में आई है। इस वजह से दूसरे स्टेट्स में हम थोड़ा सा लैग करें इस बात में। और दूसरा, मैं खुद मानता हूं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की अगर हम बात करें, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एक बात है व्यास जी, आज तक जो कॉन्ट्रैक्ट हुए ना आपके, जब पेप्सी के किसानों की बात करूं, जो आलू के किसान हैं, तो पेप्सी के साथ उनका एग्रीमेंट हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, तो व्यास जी मैं बताना चाहता हूँ, जो पहले एग्रीमेंट होते थे ना, वो एग्रीमेंट होते थे वो किसान की फसल के साथ। लेकिन अभी कानूनों में बात क्या है, जो एग्रीमेंट होगा वो किसान की फसल के साथ नहीं, वो एग्रीमेंट किसान की जमीन के साथ होगा। तो जिसकी वजह से किसान की जमीन भी खतरे में। जो ये मैसेज है आज मैं जरूर था, मैं बिल्कुल इस बात को कबूल करता हूँ, इस संदेश को पूरे देश में पहुंचाने की कि देश की जो किसान है उसकी जमीन के साथ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होंगे। एमएसपी की बात करके तो हरियाणा पंजाब या जहां पे मंडी ज्यादा है वहां पे आंदोलन को तेज कर सकते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की इस बात के ऊपर हम उन लोगों तक पहुंच सकते हैं जो बात आप कह रहे हैं, चाहे सुधार की और गुंजाइश है। और जो हमारे शहरी भाई हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, एसेंशियल कमोडिटी है, उनको समझना चाहिए, जो उनको इफेक्ट करेगा, जैसे मैंने पहले भी कहा। जी, बात समझ सकता हूं मैं आपकी। दो मेरे और क्वेश्चन है आज के लिए, प्रश्न दो मुझे और पूछने आपको। एक तो आपका जो आंदोलन है वो 3 कायदों को लेकर है, वहां तो आप बिल्कुल निश्चित है कि जब तक ये वापस नहीं लिए जाए कानून, तब तक आप कोई उसके लिए कहीं भी कोई रियायत देने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा जो मुद्दा है लखीमपुर खीरी का, मैं मानता हूं कि एडीजी ने टिकैत जी से भी बात की है, राज्य सरकार ने भी कुछ अपनी ओर से कमीशन की रचना की और कंपेंसेशन की बात की है। तो ये दो अलग अलग मामलों को लेकर लखीमपुर खीरी के बारे में आपकी क्या राय? आप
कब मानेंगे? जिस तरह से यहाँ आप बिल्कुल स्पष्ट है कि ये तीनों कानून अगर वापस नहीं लेते तब तक आपका आंदोलन जारी रहेगा। तो लखीमपुर खीरी के बारे में आपकी क्या राय है? जी सर, बिल्कुल स्पष्ट करवा रही और वो जांच होनी चाहिए। दोषी कौन कौन थे? एक जो मोनू, जो अजय मिश्रा के बेटे हैं आशीष मिश्रा, वो उर्फ मोनू, उनके साथ 3 दोस्त बताए जा रहे होंगे। जयसवाल करके दोस्त है जिसकी पहचान हुई। और जो बार बार ये कह रहे थे ना कि उसमें तो मोनू जो मंत्री जी का बेटा था ही नहीं। तो एक तस्वीर वाला ये बताने का काम करे कि जब वो गाड़ी पेट्रोल हुई है, वो किसानों को कुचल चुकी थी, फिर आगे गई तो गाड़ियों से आवाज आ रही थी मोनू भैया मोनू भैया, तो मंत्री के बेटे उसमें शामिल थे। तो ये बात तो वहां से स्पष्ट होती है। तो हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी, उनकी जांच हो। 302 का मुकदमा उनके ऊपर दर्ज किया गया है, पूरी जांच होनी चाहिए और उस जांच में कोई हस्तक्षेप मंत्री जी ना कर पाए, इसलिए मंत्री जी का इस्तीफा ही सरकार में लेना चाहिए। हमारी बिल्कुल स्पष्ट मांग रही है। यानी कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो पैकेज डिक्लेयर किया है उससे आपकी सहमति नहीं है, या आप समझते हैं वो पर्याप्त नहीं है, सिवा की जो MOS होम है अजय मिश्रा जी, वो खुद इस्तीफा न दे तब तक या उनको ड्रॉप नहीं किया जाए तब तक आप मानने वाले नहीं हैं? देखिए व्यास जी, जिन आदमियों की देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के जिम्मेदार हैं, होम मिनिस्टर हमारे राज्य के जो है आपने अजय मिश्रा जी, वो खुद ऐसी बात कहते हैं कि किन किसानों को देख लेंगे, लखीमपुर तक नहीं छोड़ूंगा, लखीमपुर तक नहीं रहने दूंगा। इस तरह की भाषा किसी मंत्री की बड़ी सोचने की बात है। हमारे देश में संविधान लोकतंत्र नाम की चीजें खत्म कर दी। तो मैं ये कह रहा चाहता हूँ, बिल्कुल सर, जब कोई मंत्री पहले इस तरह के बयान दे सकता है तो निश्चित तौर पे अगर पावर में रहेगा तो इस जांच में भी हस्तक्षेप कर सकता। तो हमारी स्पष्ट मांग ये है कि न्यायिक जांच उसकी होनी चाहिए उस मामले की पूरी, और वो न्याय जांच हो और मंत्री जी का इस्तीफा हो। जो अपने पैकेज की बात थी सर, हमने अपने भाई उस पैकेज के लिए नहीं खोए हैं। इन कानूनों की वापसी कराने के लिए, अपनी जमीन बचाने के लिए, अपने जिंदा जमीर दिखाने के लिए, अपनी जागरूकता का परिचय देने वाले वो भाई थे, उनको मैं नमन करता हूं। तो उस पैकेज के लिए और नौकरी के लिए हमने वो भाई नहीं खोए हैं। इस देश की किसानों को बचाने के लिए जो उनका बड़ा कोष था, उस कोष को चरितार्थ करवाना, उस कोष को आगे इम्प्लीमेंट करवाना, या जिस कोष के लिए उनकी जान गई है, वो कोष इस देश में जो कानून वापसी कराना है, अपनी मांगों को मनवाना, वही उनको असल श्रद्धांजलि होगी। ये पैसे के लिए नहीं सर। और अजय मिश्रा का जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक उत्तर प्रदेश में कलश यात्रा, मैंने जैसा कि जो कलश यात्रा चलेगी, आज उनकी आखिरी अरदास थी, वो कलश यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में उनकी अस्थियां लेके जाएंगी और बताया जाएगा कि इस प्रदेश उत्तर प्रदेश में कैसी योगी की सरकार है जो निर्मम हत्या कर देती है संयोजित तरीके से किसी आम किसान की जो अपना शांति से प्रोटेस्ट करते हैं। तो उससे पहले नहीं सर, अजय मिश्रा जी का इस्तीफा होना चाहिए और उनको गिरफ्तारी होनी चाहिए जो भी उसमें शामिल थे। जी अक्षय जी, आखिरी प्रश्न है मेरा कि आगे चल के आपकी रणनीति क्या होगी और किस तरह से, क्या व्यूह रचना से आप आगे बढ़ना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि मैंने बताया 26 तारीख तक के हमारे प्रोग्राम तय हैं। 26 तारीख को लखनऊ में बड़ी महापंचायत होगी लखीमपुर कांड के विरोध में ही। और आगे के हम तो ये कहते हैं कि सरकार को, हमने तो 26 की पंचायत भी ना करनी पड़े, हम तो निवेदन करते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं इस सरकार को सद्बुद्धि देना काम करे कि सरकार मान जाए, इन कानूनों की वापसी कर ले और MSP का गारंटी कानून बना दे, ताकि हमने आगे कुछ करना ही ना पड़े। 10 महीने हो गए सर, बड़ा सबके अंदर वो थकान भी है, लेकिन इस तरह से हमारे भाइयों की लाश देख के जोश भी हमारे अंदर कम नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना हम बात कहना चाहेंगे, सरकार अगर डाल है तो किसान, वो कहते हैं ना, वो कहावत है, तो सरकार जहां जो भी षड्यंत्र रचेगी उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और जैसे भी सरकार चाहे इस आंदोलन का समाधान, उस समाधान के लिए हम तैयार हैं। हम नहीं चाहते, हमारा कोई इस तरह का प्रोग्राम नहीं है
कि हमारा विशेष उत्तर प्रदेश में हमारा बीजेपी को हराने का प्रोग्राम, उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीता कोई भी जीते, किसानों की मांग मानी जानी चाहिए। इस देश में कोई भी जीता कोई भी हारे, किसानों की मांग मानी जानी चाहिए। उसके लिए हम निरंतर प्रयासरत है और जो कार्यक्रम की आपने बात की 26 तारीख तक के हमारे तय हैं और आगे हमारी मीटिंग होती है, उन मीटिंग्स में हमारे कार्यक्रम तय होते हैं। बीच में मैं तो सरकार से प्रार्थना करूंगा ऐसी कोई घटना न करे या इनके मंत्री ऐसा कोई बचकना जवाब ना दे बच्चों वाला ऐसे संवैधानिक पद पे बैठ के, ताकि किसानों को कोई ऐसा कदम उठाना पड़े या ऐसे कोई कार्यक्रम करने पड़े या इन मंत्रियों को घेरना पड़े, कोई भी ऐसी बात करनी पड़े। तो ये हमें मौका दे रहे हैं, वो बीजेपी पार्टी के लोग दे रहे हैं, इस सरकार के लोग दे रहे हैं, हमें क्यों मौका दे रहे हैं ऐसे काम करने का। तो मैं प्रार्थना करना चाहूंगा हमारी बातों का समाधान होना चाहिए। हम शांति प्रिय तरीके से, हम गुजरात के गांधी को मानने वाले लोग हैं और गुजरात की जनता मुझे देख रही है, तो गुजरात की जनता को भी कहना चाहूंगा कि गुजरात ने भी इस देश को दिशा देने का काम किया, इस देश को सरदार पटेल और गांधी दिए हैं और गुजरात की जनता भी इस मुद्दे को समझे और नरेंद्र मोदी को भी समझे, जो दिन पर दिन झूठ बोल रहे हैं और गुजरात का भी नाम खराब करने का काम करें। इसकी तरफ भी पूरे देश की गुजरात की जनता देखे और किसानों का जो आज मुद्दा चला हुआ है उसके ऊपर भी एक गुजराती उस जागरूक होके अपना जागरूकता परिचय देते हुए इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने का काम करे। समय की एक पाबंदी है मेरे पर, मगर एक प्रश्न आखिरी मैंने बोला था, मगर एक पेटा प्रश्न पूछने की आपको मैं इजाजत चाहूंगा कि आपको लगता है किसी कोर्ट के आदेश से अगर इस पूरे आंदोलन को रोका जाए या बोला जाए कि ये सब आप जो रास्ता रोकते हैं या इस तरह के आंदोलन करते हैं वो गैर कानूनी है या गैर वाजिबी है, तो क्या होगा? देखिए, हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का पूरा सम्मान करते हैं और कोर्ट जो बात कहे हमारे सिर माथे के ऊपर है, लेकिन हम ये बात कहना चाहते हैं जो कोर्ट संज्ञान ले वो सरकार को पहले ध्यान में रख के संज्ञान ले। देखिए, मैं बस एक मिनट में अपनी ये बात कहना चाहूंगा, जो ये कानून भी बनाए हैं ना सर, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट इस बात को देखने का जिम्मेदार होता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। देखिए सर, जो एग्रीकल्चर जो विषय है, कृषि जो विषय है वो स्टेट का विषय है, वो सेंटर का विषय नहीं है। जो सेंटर में है, जो ट्रेडिंग के कानून है एग्रीकल्चर के, वो सेंटर की सरकार बना सकती है। फूड सब के ऊपर सेंटर की सरकार कानून बना सकती है, ये कंकरेंट लिस्ट का विषय है। लेकिन जो फूड ग्रेन्स है उसके ऊपर स्टेट सरकार कानून बनाएगी, तो ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सबसे पहले संज्ञान उन कानूनों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट जो भी बात कहेगा हमारी उनके सर माथे के ऊपर उनकी बात है सुप्रीम कोर्ट की। जी धन्यवाद अक्षय जी, आप हमारे साथ जुड़े और काफी चर्चा भी एक स्तर से मैं कहूंगा कि किसी नेशनल चैनल पे जितनी चर्चा हो सके उससे भी ये गुणवत्ता की दृष्टि से, क्वालिटी की दृष्टि से आपकी बातें सुनना, आपकी तर्क सुनना, मैं मानता हूं कि एक स्तर की बात हुई है। उसके लिए मैं आपसे तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। गुजरात समाचार टेलीविजन के दर्शकों की ओर से, मेरी व्यक्तिगत हैसियत से भी मैं आपका आभारी हूं, आपको धन्यवाद करता हूं और इसी के साथ मैं चर्चा को अब पूर्ण विराम तक ले जाता हूं। धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले समय में भी आपसे बात करते रहेंगे। धन्यवाद। जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद। દર્શક મિત્રો, આપે આખી વાત ખેડૂત આંદોલન સાથે જોડાયેલી વિગતવાર સાંભળી હશે। હિન્દી આપણા માટે મુશ્કેલ વસ્તુ નથી એટલે હું એની પુનઃ ચર્ચામાં પડતો નથી। આ વાતને આપણે આજે અંત તરફ દોરી જઈએ છીએ। મળીશું આવતીકાલે એક નવા વિષય સાથે, નવી ચર્ચા સાથે। ધન્યવાદ, શુભરાત્રી।